Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to do we are going to start the 6th unit. And first poem of the 6th unit is class discussion. We are going to do in this class today. और class discussion जो poem है, this poem is a poem which is written about a class, a group of students, a teacher discussing something in the class. Okay, ये poem है. So first let's read the poem and then I will explain you what it is. In the class discussion, Jane, you hardly said a word. We all aired our opinions, but from you we barely heard. You sat and stared in silence, surrounded by the chatter. Now tell me, Jane, and please be plain. Is there anything the matter? Jane looked up and then she spoke. Her voice was clear and low. There are many people in this world who are rather quiet, you know. So, this is the poem that we just read. तो poem है जिसमें there is a class and the teacher is discussing on some topic. Teacher जो है वो किसी topic पे discuss कर रही है with the students and then she finds some problem in the class. And what was the problem? The problem was that there was one child who was sitting quietly, who was not taking part in the discussion. So teacher just thought कि why, and you know, teacher जो होते हैं वो सबको देखते हैं कि आखिर सब बच्चे क्या कर रहे हैं, तो उसे लगा कि क्या प्रॉब्लम है. So she wanted to find it out and that is what the poem is all about. Okay, so in the class discussion, Jane, you hardly said a word. So she is talking to a little girl, and what is her name? Her name is Jane. Okay. In the class discussion, Jane, you hardly said a word. Class discussion में Jane, तुमने hardly कुछ बोला है, ठीक है ना? कुछ भी बोला नहीं है तुमने. And we all aired our opinions. Aired our opinions यानी क्या होता है? Keeping our opinions, है ना? अपनी अपनी चीजें जो है वो बोलना, बताना. तो we all में कौन आता है? The teacher and the whole class. We कौन है? We is the teacher and the whole class. तो वो कह रही है कि we all aired our opinions. हमने सबने अपने opinions, हमारी जो भी class discussion चल रही थी, उस पे हमने जो हमारे मन में आया, जो हमारी इच्छा हुई, सबने कुछ ना कुछ बोला है. But from you we barely heard. Barely मतलब क्या होता है? Barely heard means बहुत कम, ना के बराबर. ठीक है? Barely मतलब ना के बराबर. तो we barely heard. तो तुमसे हमने कुछ भी नहीं सुना. तुमने शायद ही कुछ बोला है या फिर हमने तुमसे कुछ भी सुना ही नहीं. तुम्हारे मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं आई. क्लास डिस्कशन हो रही है तो उसमें क्या होना चाहिए? उसमें डिस्कशन होना चाहिए तो सारे बच्चों को बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट करना चाहिए. बट जेन जो है उसने कुछ भी नहीं बोला. शी डिड नॉट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड. ठीक है? तो शी वॉज बेयरली हर्ड. किसी ने भी उसे सुना नहीं. You sat and stared in silence, surrounded by the chatter. तो फिर टीचर बोल रहे हैं कि तुम क्या कर रही थी? You sat and stared. तुम बैठी हुई थी आराम से, quietly, चुपचाप से बैठी हुई थी. And then what you were doing? You were staring. You were staring. एक जो भी बैठे थे उनको तुम देख रही थी. ठीक है ना? Surrounded by the chatter and everybody was talking. Everybody was talking. Surrounded by the chatter means surrounded मतलब क्या? घिरा हुआ. किस चीज से घिरे हुए हैं? chatter से, बातचीत से. chatter क्या होता है? जब बहुत सारी बातचीत एक साथ होती है तो तुम कहाँ बैठी हुई थी? सबके बीच में, बातचीत के बीच में तुम बैठी हुई थी और तुम कुछ भी नहीं बोल रही थी. ऐसा होता है ना बहुत सारे. अगर हम किसी फंक्शन में जाएंगे या पार्टी में जाएंगे तो हम देखते हैं कि सब बहुत खुश हैं,
कोई किसी को लेके बात कर रहा है, कोई किसी को लेके बात कर रहा है, और कोई कोई होते हैं जिन्हें पार्टीज फंक्शंस नहीं पसंद आती हैं और वो ज़बरदस्ती को आए हुए होते हैं वहाँ पे, तो वो एक कॉर्नर में चुपचाप से बैठे होते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही माहौल था क्लास में, सब कोई जो है वो बोल रहे थे, बात कर रहे थे, अपनी अपनी ओपिनियंस रख रहे थे, और टीचर जो है वो सबकी बातें सुन रही थी और वो भी अपनी ओपिनियन रख रही थी। शी वॉज सजेस्टिंग एंड गिविंग हर ओपिनियन। लेकिन जो जेन है वो कुछ भी ना बोल रही थी, लेकिन वो सब कुछ आराम से क्या कर रही थी, सुन रही थी, सबकी बातों को वो क्या कर रही थी, शी वॉज लिसनिंग टू एवरीवन विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड। नाउ टेल मी जेन। तो टीचर जो है वो थोड़ी सी क्यूरियस होती है कि वाई, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद जेन। सब बातें कर रहे हैं बट जेन जो है वो बिल्कुल शाई है, एकदम चुपचाप से बैठी है, कुछ भी नहीं बोल रही है। तो उसने जेन से सोचा कि मैं पूछ ही लेती हूँ, और इसलिए क्या किया उन्होंने पूछा कि नाउ टेल मी जेन एंड प्लीज बी प्लेन। प्लीज बी प्लेन मीन्स टेल मी जेन एंड प्लीज बी प्लेन। तो मतलब मुझसे कुछ छुपाना नहीं, कुछ हिचकिचाना नहीं। यहाँ पे प्लीज बी प्लेन का मतलब क्या है कि टेल मी एवरीथिंग सिंपली। प्लेन मतलब क्या होता है, सिंपली, सिंपल। तो वो कह रही हैं कि टेल मी एंड प्लीज बी प्लेन, कि मुझे बताओ और कुछ भी मत छुपाओ, जो भी बात है वो मुझे बता दो कि आखिर तुम इतनी चुपचाप से क्यों बैठी हुई हो क्लास में। एंड इज देयर एनीथिंग द मैटर, क्या ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से तुमने बात नहीं कर रही हो, जिसकी वजह से तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। तो वो बात कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि उसे नहीं समझ में आ रहा हो। टीचर जानना चाहती थी कि उसे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। टीचर ये भी जानना चाहती थी कि और कोई प्रॉब्लम है क्या, उसे वर्ड्स की उसे बोलने में प्रॉब्लम है, या फिर कोई उसे टीज करता है जो वो बोलती है, या बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो टीचर जो है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो जानना चाहती थी कि वाई जेन वॉज नॉट सेइंग एनीथिंग। ठीक है, एंड दैट्स वाई शी आस्क्ड हर कि प्लीज टेल मी if there is anything that she should know so that she could solve that problem. Okay, so she is asking, is there anything the matter? Then Jane says, Jane looked up, then she spoke. तो जब जेन ने मैम की बात सुनी, टीचर की जब बात सुनी, तो वो क्या करती है, वो टीचर की तरफ देखती है और तब बोलती है। Then she spoke. Her voice was clear and low. तो उसकी वॉइस कैसी थी, लो थी, और लो होने के साथ साथ क्लियर थी। It shows what? It shows that Jane was confident. जेन को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि उसे टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था, या फिर वो बोल नहीं सकती है, या फिर ऐसी कोई बात भी नहीं थी। हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो। उसकी वॉइस जो है वो लो जरूर थी, लेकिन वो एकदम क्लियर थी। दैट मीन्स शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थी। देयर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड। तो वो कहती है, जेन कहती है कि देर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। देर आर सो मैनी पीपल एंड दे आर ऑल ऑफ डिफरेंट काइंड। शी वॉन्ट्स टू से दैट देर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हु आर रेदर क्वाइट यू नो। और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कैसे हैं, बिल्कुल चुप। ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें बोलना बहुत ज़्यादा नहीं पसंद आता है। तो जेन क्या बताना चाहती है, जेन बताना चाहती है कि देर इज नो प्रॉब्लम विथ मी, देर इज नो मैटर विथ मी, बट आई एम वन ऑफ द पीपल who don't like talking too much, who like to sit quietly. Okay, she is one of those people who do not like to talk much, and they like to sit peacefully without talking, listening to others, है ना। तो कुछ होते हैं जो गुड लिसनर्स होते हैं और कुछ होते हैं जो गुड स्पीकर्स होते हैं। तो वो जो स्पीकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अच्छा बोलते हैं, और जो लिसनर्स होते हैं वो अच्छा मतलब वो सबकी बातें सुनते हैं। तो यहाँ पे जेन क्या है, शी इज़ अ गुड लिसनर। हमें कैसे पता चल रहा है कि शी इज़ अ गुड लिसनर? हर कोई जो चुप रहता है वो गुड लिसनर नहीं होता है। हर कोई जो चुप रहता है वो कभी कभी अपनी दुनिया में ही खोया रहता है, इसी वजह से चुप रहता है। वो क्लास से उसको कोई मतलब नहीं रहता है, इसलिए वो चुप रहता है। लेकिन यहाँ पे जेन जो है, जेन के साथ ऐसी बात नहीं है। और हमें कब समझ में आ रहा है ये बात, वो हमें उसकी इस लाइन से समझ में आ रहा है। हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो, शी वॉज कॉन्फिडेंट। उसको ऐसा कोई डर नहीं था कि हाँ वो इस दुनिया में नहीं थी, क्लास डिस्कशन में शी वॉज मेंटली नॉट देयर, शी वॉज देयर।
लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि वो उन लोगों में से है जो गुड लिसनर हैं मगर दे डोंट लाइक स्पीकिंग मच. ओके, तो शी इज अ गुड लिसनर एंड शी डज नॉट लाइक स्पीकिंग मच एंड शी इज वन ऑफ दोज हु आर रादर क्वाइट. ओके, तो क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत रहना. ठीक है, शांत. क्वाइट दो होते हैं, एक होता है QUITE क्वाइट और एक होता है QUIET क्वाइट. ओके, सो दिस क्वाइट मीन्स काफी, है ना. आई एम क्वाइट हैप्पी. आई एम क्वाइट हैप्पी दैट मीन्स मैं काफी खुश हूँ. ओके ओके, मैं खुश हूँ. एंड दिस क्वाइट मीन्स शांत रहना. ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्वाइट का मीनिंग क्या है? शांत. ओके, so now let's see the summary of the poem. The teacher has held a class discussion. All the students and the teacher herself are busy in the discussion. तो टीचर ने क्या किया है? एक क्लास डिस्कशन रखा है और सारे टीचर और स्टूडेंट्स जो हैं, सारे स्टूडेंट्स और टीचर जो हैं, दे आर बिजी विद द डिस्कशन. बट जेन डज नॉट पार्टिसिपेट इन इट. लेकिन जेन जो है बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही है इस क्लास डिस्कशन में. शी इज़ वन ऑफ द क्लास स्टूडेंट बट शी इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन इट. शी इज सिटिंग एंड स्टेयरिंग इन साइलेंस ऑल द टाइम. तो वो क्या कर रही है? वो सिट करके, बैठ करके और स्टेयर कर रही है ऑल द टाइम. ठीक है, तो टीचर जो है, व्हाट शी सेज, द टीचर आस्क्ड हर इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम. तो टीचर जो है उसे लगता है कि हमें पूछना चाहिए कि जेन को आखिर क्या प्रॉब्लम है. उसे टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या फिर शी हैज़ नॉट अंडरस्टूड द टॉपिक और देयर इज सम अदर रीज़न. तो वो पूछती है जेन से कि इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम. एट दिस जेन रिप्लाइज in a very clear voice that there are many people in the world who do not like to speak because they are quiet by nature. तो वो बोलती है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बोलना नहीं पसंद करते हैं और वो चुप रहना ज़्यादा पसंद करते हैं. दे आर बिकॉज दे आर क्वाइट बाई नेचर, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा होता है. कैसा? चुप रहने वाला, शांत रहने वाला, बहुत ज़्यादा हल्ला नहीं करने वाला, है ना. तो जेन भी इसी तरह की लड़की थी. सो आई होप यू लाइक द poem. Now let's get on with the word meaning. Okay, before we discuss the word meanings, let's discuss the rhyming word of the poem. Okay, तो चलो word meaning discuss करने से पहले हम rhyming words देख लेते हैं poem की. हाँ, तो rhyming words क्या है poem में? Word and heard. Okay, मैं इसे blue से करती हूँ. Word and heard. This is one rhyming word. ठीक है ना. उसके बाद chatter and matter. Okay, chatter and matter. Then it's एक और है इसमें, Jane and plain. क्या है? Jane and plain. Okay, उसके बाद है low and no. Okay, low and no. So how many rhyming words are there? There is word, heard, chatter, matter, Jane and plain. Okay, so I will write it down over here. Word, heard, chatter, matter, Jane, plain and low and no. So these are rhyming words that we will find in the poem. What are those? Those are word, heard, chatter, matter, Jane, plain, low and no. Now let's see the word meanings. So the first word is aired. Aired means क्या? Aired means what? खुलकर बोलना. ठीक है, एक्सप्रेस पब्लिकली. जब हम पब्लिक में कोई भी चीज़ बोलते हैं, स्पीच या कुछ भी, तो हम उसको बोलते हैं कि दैट इज एयर.
ओके। ओपिनियंस, ओपिनियंस का मतलब होता है अपने आइडियाज, अपने विचार जो हम रखते हैं उसको कहते हैं ओपिनियन। बेयरली, बेयरली का मतलब होता है ओनली, जस्ट, बहुत मुश्किल से, ठीक है। बेयरली मतलब क्या, बहुत ही मुश्किल से। स्टेयर्ड, स्टेयर्ड का मतलब क्या होता है, घूरती रही, ठीक है। स्टेयर्ड का मतलब होता है घूरते रहना, घूरना, ठीक है। सराउंडेड, सराउंडेड का मतलब क्या होता है, घिरा हुआ। अगर किसी कोई चीज जो है किसी चीज से घिरी हुई है तो उसे कहते हैं सराउंडेड। फिर चैटर, चैटर का मतलब क्या होता है, बातचीत, बातचीत को बोलते हैं चैटर, ओके। Let's do the question answers, okay. So questions from the textbook, textbook से जो questions है, let's read का जो question है वो हम वहाँ पे देखेंगे। The first question is what activity was going on in the class? क्लास में कौन सी एक्टिविटी जो है वो हो रही थी, ठीक है। तो a class discussion was going on in the class, क्या हो रही थी क्लास में, क्लास डिस्कशन चल रही थी, ठीक है। a discussion was going on in the class. You can also write class discussion. class discussion भी लिख सकते हो या फिर सिर्फ discussion भी लिख सकते हो, ठीक है। तो a discussion was going on in the class. Now who was quiet one in the class? तो quiet one क्या था, चुपचाप से बैठा हुआ था, वो कौन था? So it was Jane. So Jane was the quiet one in the class. जो चुप से बैठी हुई थी वो कौन थी, वो थी Jane, okay. Now let's see the next question. Next question क्या है, next question है कि why was she quiet? चुप क्यों थी वो, क्यों चुपचाप से बैठी हुई थी? She was afraid to air her opinions. पहला ऑप्शन क्या दिया है, उसे डर लग रहा था अपने ओपिनियंस देने में। She hated the noise, या उसे नॉइज पसंद नहीं थी, आवाज पसंद नहीं है, शोरगुल ये सब पसंद नहीं है। She didn't like the activity, ये जो क्लास डिस्कशन की एक्टिविटी है, जेन को ये एक्टिविटी अच्छी नहीं लगती है। She was quiet by nature, या फिर उसका नेचर ही ऐसा था, शांत रहने वाला, चुप रहने वाला। तो जो आंसर होगा वो यही होगा, यस। फोर्थ नंबर जो है वो आंसर है, She was quiet by nature। वो by nature कैसी थी, क्वाइट थी, ओके। How do you interact in class during discussion? Next question is कि तुम लोग कैसे क्लास में इंटरैक्ट करते हो, डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट। तो कैसे इंटरैक्ट करते हो क्लास में, तुम लोग कैसे इंटरैक्ट करते हो? तो इसका आंसर है कि आई एक्टिवली पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशन, ठीक है। तो मैं बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हूँ, यानी कि आई एम वेरी हैप्पी। जब क्लास डिस्कशन होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है ना। आई डोंट लाइक टू बी क्वाइट, और मैं चुपचाप से बैठना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, चुपचाप से बैठना मुझे पसंद नहीं है। एक और क्वेश्चन है इसमें, दैट हु इज द पोएट ऑफ द पोएम क्लास डिस्कशन। तो क्लास डिस्कशन पोएम का पोएट कौन है, इट इज जर्वस फिन, ओके। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट, पोएट जर्वस फिन। ये जो है शी इज द पोएट ऑफ द पोएम क्लास डिस्कशन। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे कर सकते हैं, दिस आर द क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड व्हाट इज द दिस क्वेश्चन इज व्हाट इज द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, व्हाट आर द What are the rhyming words? So we have already discussed. We were just going to write the answer. Okay. Rhyming words are क्या है? सबसे पहले है word and heard. Word and heard.
then it is chatter and matter, then it is Jane and plain, then it is low and no. Okay, so it is low, and no. Okay, so there are 4 pairs of rhyming words. What are the rhyming words in the poem? These are word, heard, chatter, matter, Jane, plain, low and no. These are the rhyming words that have come in the poem. Okay? Now this is the last exercise of the poem. Fill in the grid given below by assigning qualities to each person. यहाँ पे कुछ पर्सन दिए हुए हैं और कुछ क्लूज दिए हुए हैं. हम उन क्लूज को पढ़ेंगे और हम उसके बाद हम उनको क्या करेंगे, हम इस बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा जो ये है वो उनके लिए फिट जाता है. ठीक है, किस में वो फिट, वो जो है कौन सी क्वालिटी उनके लिए फिट बैठती है. तो पहला है कि संगीता लेंड्स हर पेंसिल टू हर पार्टनर. संगीता जो है अपना पेंसिल अपने पार्टनर को लेंड करती है, यानी कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अपनी चीज़ों को शेयर करने में. ठीक है, उसके बाद है कि नीरव इज ऑल्सो कॉल्ड अ चैटर बॉक्स. नीरज को क्या बोलते हैं, चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स का मतलब क्या होता है, जो बहुत बातें करते हैं हम उनको चैटर बॉक्स बोलते हैं. बातूनी, इसका मतलब होता है क्या, बातूनी. जो बहुत बातें करते हैं उनको हम चैटर बॉक्स बोलते हैं. फिर उसके बाद है प्रणव रिसेंटली सेव्ड अ कैट फ्रॉम ड्रॉनिंग इन द लेक. प्रणव ने क्या किया, एक कैट को डूबने से बचाया. ठीक है, प्रणव जो है वो बहुत ही अच्छा बच्चा है और उसने क्या किया है, एक कैट को डूबने से बचाया है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. मेघा इज जस्ट द अपोजिट ऑफ नीरव. मेघा जो है वो नीरव के जस्ट अपोजिट है. यानी नीरव ने क्या किया, एक कैट को डूबने से बचाया. उसकी जगह पे अगर मेघा होती तो क्या करती, वो डर जाती, वो उसको नहीं बचाती. ठीक है ना, वो खुद भी डर के भाग जाती. हाँ, कि अरे वो पानी में गिर गई है, अरे भागो घर भागो जल्दी से. ठीक है, तो ऐसी होती. मिथिला ऑलवेज टीजेस एवरीवन. तो मिथिला जो है वो हमेशा सबको क्या करती रहती है, चिढ़ाती रहती है, छेड़ती रहती है. टीज करने का मतलब क्या, सबको छेड़ते रहना, चिढ़ाते रहना. ओके. रितु इज ऑलवेज सीन विथ अ बुक इन हिज हैंड. और रितु कैसी है, वो हमेशा किताबों के साथ ही रहती है. तो यहाँ पे कितने लोग हैं, नीरव है, प्रणव है, मेघा है, मिथिला है, रितु है और संगीता है. एंड वी हैव टू टेल देम कि क्या क्वालिटीज़ हैं इनमें. तो क्वालिटीज़ भी यहाँ पे दी हुई हैं. पहला है ब्रेव. ब्रेव का मीनिंग होता है बहादुर. ओके. दूसरा है नॉटी. नॉटी का मतलब पता ही है सबको, शैतान. क्वाइट, जो बहुत कम बोलते हैं, चुप रहते हैं, उनको क्वाइट बोला जाता है. टॉकटिव. टॉकटिव जो है, जो बहुत बात करते हैं, उनको टॉकटिव बोला जाता है. जेनरस, जो बहुत दयालु होते हैं, वो उनको हम जेनरस बोलते हैं. और स्टूडियस. स्टूडियस वो होते हैं जो बहुत पढ़ाकू होते हैं, हमेशा पढ़ते रहते हैं. एक चीज़ है, मेघा इज जस्ट अपोजिट ऑफ नीरव. नीरव कैसा है, नीरव मैंने बताया कि नीरव बहुत, उसने कैट को बचाया था, लेकिन नहीं, कैट को प्रणव ने बचाया था. नीरव इज कॉल्ड अ चैटर बॉक्स. नीरव कैसा लड़का है, वो चैटर बॉक्स है, वो बहुत बातें करता है. ठीक है, चैटर बॉक्स है, बातूनी है. और मेघा इसकी बिल्कुल क्या है, ऑपोजिट है. नीरव की ऑपोजिट है, प्रणव की नहीं. यानी कि क्या करती है, बहुत कम बातें करती है. तो सबसे पहले नीरव का क्या लिखेंगे हम, नीरव का लिखेंगे टॉकटिव. नीरव कैसा है, ही इज वेरी
टॉकटिव, है ना, बहुत बात करने वालों को क्या बोलते हैं हम, टॉकटिव। ओके, उसके बाद प्रणव कैसा है, प्रणव ने एक कैट को डूबने से बचाया, है ना, प्रणव कैसा बच्चा होगा, प्रणव अगर एक कैट को डूबने से बचा रहा है, दैट मीन्स प्रणव इज अ ब्रेव बॉय, तो हम उसको क्या लिखेंगे, ब्रेव, ब्रेव में टिक करेंगे। फिर मेघा कैसी है, शी इज अपोजिट ऑफ नीरव, तो नीरव बहुत टॉकटिव है, चैटर बॉक्स है, नीरव को हम लोग चैटर बॉक्स भी बोलते हैं, तो मेघा को क्या बोलेंगे, मेघा को हम लोग बोलेंगे क्वाइट, क्या बोलेंगे, क्वाइट। उसके बाद मिथिला, मिथिला क्या करती रहती है, सबको छेड़ती रहती है, सबको चिढ़ाती रहती है, तो ऐसे बच्चे जो दूसरों को परेशान करते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं, चिढ़ाते रहते हैं, ऐसे बच्चों को हम क्या बोलते हैं, वी से दे आर नॉटी, तो मिथिला क्या है, शी इज अ नॉटी गर्ल। फिर है ऋतु, ऋतु इज ऑलवेज सीन विथ अ बुक इन हिज हैंड, और ऋतु कैसी है, ऋतु के हाथ में हमेशा क्या देखोगे, किताब, है ना, शी इज ऑलवेज सीन विथ अ बुक इन हर हैंड, तो इसका मतलब क्या है, उसके हाथ में हमेशा बुक रहती है और वो पढ़ती रहती है, तो वो क्या है, शी इज स्टूडियस। ओके, उसके बाद संगीता, तो संगीता का हमने क्या पढ़ा था कि संगीता जो है वो उसने अपने, शी लेंस हर पेंसिल टू हर पार्टनर, वो अपने पार्टनर को अपनी पेंसिल जो है वो दे देती है, तो वो कैसी उसकी क्या क्वालिटी आई, दैट शी इज जेनरस। जेनरस क्या होता है, जो दयालु होते हैं, जो किसी को भी कोई भी चीज दे देते हैं। सो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स, दीज आर फ्यू ऑफ द क्वालिटीज दैट वी फाइंड इन पीपल, इन नॉट इन पीपल, इन द स्टूडेंट्स इन क्लास। ठीक है, क्लास के ही बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, कोई बहुत चुप बैठता है, कोई बहुत नॉटी होता है, कोई बहुत बात करता है, कोई एक जगह पे बैठ नहीं सकता है ना, कोई जो है वो ब्रेव होता है, वो किसी की भी हेल्प करने के लिए फटाक से रेडी रहता है, और कोई जो है वो बहुत पढ़ने वाला होता है, दिन भर पढ़ता रहता है, उसको और कोई काम नहीं होता है। तो ये जो है, दीज आर द क्वालिटीज दैट वी फाइंड इन अ क्लास। तो विद दिस वी आई एंड माई क्लास ओवर हियर, और मुझे आई होप यू लाइक द पोएम क्लास डिस्कशन, इट इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पोएम, है ना, जैसे पोएम्स होती हैं उससे काफ़ी डिफरेंट था ये पोएम, और मुझे लगता है कि क्लास डिस्कशन जो है वो सबको ही करना चाहिए, और क्लास में जो क्वाइट होते हैं उनको भी वो बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, तो एटलीस्ट उन्हें भी एक मतलब एक बार अपना हैंड रेज करके या कैसे भी अपने ओपिनियन जो है उसको रखना चाहिए। दे शुड नॉट सिट क्वाइट, I know it is the nature of everybody's nature is not just the same, लेकिन फिर भी अपनी ओपिनियंस हमें रखने में कभी भी क्या करना नहीं करना चाहिए, हिचकिचाना, हेजिटेट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। एंड आई होप दैट जेन, in spite of being quiet, she will actively participate in the class discussions next time in her class. I hope so. Why? Because without even being a chatterbox we can actively participate in a class discussion. हमें तो वो क्या कहते हैं कि सिर्फ we just want to know that yeah, you have got to the students have got to the point, whatever we are teaching they have got it. तो इसी के लिए तो class discussions होती है ना, and also to improve their skill, है ना, spoken skill. So आई होप जो बच्चे क्वाइट भी होते हैं उन्हें भी थोड़ा बहुत बोलना चाहिए और उन्हें भी एटलीस्ट क्लास डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। विद दिस नोट आई एंड माई लेसन हियर। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर एंड बी गुड।